Good afternoon and welcome to today's session on concept of autocratic centralization by Mr. Vishal Shah. I am Prasanna, co-host of the event today. Let me introduce today's presenter, Mr. Vishal Shah, CEO, co-founder of Cinesoft Technologies. He is known as seasoned technology stalwart, an inventor of specific patented technologies, a writer, a serial entrepreneur, an investor, and importantly, a go-to guy for MSMEs. We also have Mr. Sudhir Chaubey, co-founder of Cinesoft in the panel. He looks after the commercial aspect of our organization. The webinar is organized to help every enterprise that is a victim of data scatteredness. Yes, the more the data, the scattered the data is, the higher is the risk of data loss. Data files like designs, drawings, spreadsheets, documents are scattered on servers, laptops, and desktops. There is an urgent need for technology that can help the enterprise's data without depending on users' action to save data on central location. This webinar is all about explaining and demonstrating such technologies with its use case. If you have any questions while you watch this demonstration, kindly write in question and answer tab in the bottom of your Zoom login. The panel will take up the questions at the end of this session. Alternatively, in case you want to ask any question in the end of the session, you may please raise your hand and we shall activate your microphone to ask the question. Kindly fill the survey form which you will get at the exit of this webinar to give us your valuable feedback. Vishal sir, can you please take it ahead from here? Yeah, good afternoon all. So this is another webinar we are coming up with autocratic centralization. Believe me, autocratic word is not inspired from whatever is going on this time in the Europe. But yes, sometimes autocracy is good and we will see why. And today we are going to see. So first of all, every time when you see me taking this webinar, my background is always black box. So my marketing team would be, unpleasantly surprised that I could not keep this background because I am not in our office studio where we have background and green curtain and everything. I am traveling to Delhi, and the good news is that Cinesoft yesterday received a very, very prestigious award of being listed as one of the top 100 SMEs of India.
And we were bestowed this particular honor and award from the Minister of MSME, Mr. Narayan Rane, and Minister of State, MSME, Mr. Bhanu Pratap Wadhwa. So I'll be immediately after finishing this webinar, I'll be on my way to Ahmedabad. But I thought, I would like to share this good news. And this award was, given to the companies which are selected from approximately 42,000 SMEs who applied for this award, who nominated themselves for this award. And the basis or criteria of giving this award was revenue, profitability, IPR, patents, governance, HR policies, discipline of the finance, tax discipline. All these things were considered, and now Synersoft is listed as one of the top 100 SMEs, and it is quite a journey. Last 14 years, we started as a very, very small micro organization, a technology company, and now we are an established SME. I'm not, shying off saying that we are an SME. We have developed and built product for SMEs, and we would be SMEs forever as far as our product design thinking is concerned. So that was slightly off the topic, and I was excited to share that. So I took a couple of minutes to inform you about it. So this webinar on autocratic centralization is handpicked because we understand that most of the SMEs are victim of data scatteredness. And how do we make sure that they are not the victim of data scatteredness? They have good control on minimizing the data scatteredness. And today we are going to see all these things. We are going to understand that also. So before that, as usual, मुझे ये जानना है कि इतना बड़ा ऑडियंस है, उसमें मतलब क्या कॉम्पोजिशन है ऑडियंस ग्रुप का, who are the enterprise owners, who are the IT professionals or IT vendors. So we will run a small survey. Prasanna, आप survey शुरू कीजिए. I request all of you to help me understand your profiles so that I can steer this webinar in more relevance. So as we see on the screen, the results of the attendee profile, 57% are IT professionals, 21% are top management personnel, and system integrators or those who are in business of IT consulting are 21%. So we have majority of IT people attending this webinar. And of course, by my perspective, 21% of top management personnel is also a great encouragement for us, because they are also sensitive to this kind of serious problems their organization may be facing. So I will relate to the audience profile in my further slides, and we will see how autocratic centralization works and why it is needed. So now we are starting our today's agenda. I'll just change the slide. So the question is, why autocratic centralization? So I would like to share a few stories to understand it in a very layman's language. And then we will see something on the screen so that you can understand the problem of data scatteredness. The first story is about, let's imagine
कि there are so many marbles scattered on the floor. You would all agree that these marbles are very difficult to preserve from loss. At the same time, अगर हम ये पूरे जो मार्बल्स है उनको एक अच्छे से जार में भर के अच्छे से लॉक करके एक रूम के कोने में रख देते हैं, then it will be a real simple and easy to protect those marbles from loss. तो यही बात डेटा के साथ भी होती है. ये मार्बल्स अगर आपके डेटा पॉइंट्स है, अगर आपकी फाइल्स है, आपके फोल्डर्स है, अगर वो स्कैटर्ड पड़े हुए हैं, नॉट ऑन द फ्लोर बट on different devices like your computers, laptops, mobile phones, tablets, then it is very difficult to protect them from loss. अगर वो कोई एक सेंट्रल जगह पर रहते हैं तो आपको पता है कि आपको वही सेंट्रल डिवाइस है जिसके ऊपर आपका सब डेटा सेंट्रलाइज हुआ है, उसी को आपको संभालना है. देन इट मेक्स इट वेरी सिंपल. योर बैकअप स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो सिंपलर. तो ये कॉन्सेप्ट है डेटा स्कैटर्डनेस का. अगर डेटा स्कैटर्ड है तो उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट है. दूसरा एक हम लोग हर रोज देखते हैं जब हम घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल. ट्रैफिक सिग्नल पे हम देखते हैं कि अगर पुलिस है या फिर इफ दैट ट्रैफिक सिग्नल इज इक्विप्ड विद दोज कैमरास, पीपल फॉलो the signals. But if police is not there and if that traffic signal is not equipped with such cameras, people do not follow. So a basic human instinct is to follow the rules. Of course, in India, to follow the rules if they are enforced, to follow the rules if there is a fear of being caught or if there is a fear of being fined for breaking the rules. तो इसको मैं क्यों दे रहा हूं एग्जांपल? तो अगर आपका डेटा स्कैटर्ड है और अगर आपको वो डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पे, आपका फाइल सर्वर हो सकता है, आपका नास डिवाइस हो सकता है, नेटवर्क एट स्टोरेज डिवाइस, अगर आपको वो सब डेटा अपने फाइल सर्वर पे या नास डिवाइस पे स्टोर करवाना है यूजर से, तो आपको यूजर को बोलना पड़ता है. एंड योर यूजर्स आर द सेम पीपल who we see on the road on the traffic signal, including us. तो हो सकता है कि वो लोग इग्नोरेंट या नेग्लिजेंट हो आपके इंस्ट्रक्शन से कि भाई सब डेटा हमको सेंट्रल लोकेशन पे डालना है. They might do it, they might not do it. But what happens with the data scatteredness? Data remains scattered not at the discretion or choice of the organization which owns that data, but data remains scattered because of the discretion of the user. It remains at the mercy of the user. If user does not save the data on the central location, it remains on their devices in very, very scattered form, and organization cannot really simplify the protection of data from loss. Now, let us understand one story. हमने बहुत बचपन में सुनी है कि एक बादशाह था, उसने फरमान किया कि रात को सब लोग, उसके महल में एक पूल है, उसके अंदर मिल्क, दूध का एक कटोरा भर के जाएंगे और उसमें डाल देंगे. They will pour milk in the night in the pool in his palace. जब मॉर्निंग में सब देखा तो वो पूल पूरा पानी से भरा हुआ था. Everyone thought that since everyone is going to bring milk, why not I pour water? सब लोगों ने वही सोचा और वो जो पूल था वो पानी से भरा मिला, दूध से भरा नहीं मिला. So this is where I want to bring in the word autocracy. When you request people to follow certain rules,
People might or people might not follow. It depends on their sincerity, it depends on their commitment. लेकिन अगर आप उसको चॉइस ही नहीं देते हैं वो फॉलो करने का, और वो अपने आप फॉलो हो जाता है, हम देखेंगे वो कैसे, तो वो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज can be named as autocratic centralization, where users are not having choice for all good reasons. अगर आपका डेटा स्कैटर्ड रहता है तो उसकी कंसिक्वेंसीज है। पहला, आपका डेटा डुप्लीकेट होता है। एक ही फाइल मेरे कंप्यूटर में भी है, सुधीर जी के कंप्यूटर में भी है, राजेंद्र के कंप्यूटर में भी है, प्रसन्ना के भी कंप्यूटर में है, अलग अलग वर्जन्स में डेटा स्कैटर्ड रहता है। तो हमको सभी के कंप्यूटर का बैकअप प्लान करना पड़ता है, जो एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। और जो बैकअप हम करते हैं वो बहुत लो कॉन्फिडेंस रहता है। हमको पता है कि हमारा डेटा बहुत जगह पर है और हम बैकअप खाली अपने फाइल सर्वर का करते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस ऑन द बैकअप है कि मैं इन केस ऑफ डेटा लॉस आई विल बी एबल टू फुल्ली रिकवर माय डेटा टू मेंटेन माय बिजनेस कंटिन्यूटी, वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत कम हो जाता है। So this is why since last 40 years, since when Sinnersoft was incorporated, we are promoting and we are insisting that autocratic centralization should be the part of every IT strategist's strategy. So this is why I wanted to explain autocratic centralization versus democratic centralization, जिसमें यूजर को जो करना है वो करता है। तो अभी I will request my colleague Rajendra to show this कि वो democratic centralization जब होता है तो कैसे होता है, which you can relate with the IT infrastructure in your organization. Rajendra, can we open a normal unhardened computer system, तो हम बता सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन होता है। मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करता हूं। तो अभी हम एक कंप्यूटर में जाएंगे जो ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका प्रॉब्लम आता है। तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है, और नॉर्मली जब आप अपने आईटी एनवायरनमेंट में होते हैं तो वो इस तरह से दिखता है। राजेंद्र, कैन वी गो टू दिस पीसी? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लोकल सी ड्राइव है, गूगल ड्राइव भी है, नेटवर्क लोकेशन भी है। जैसे आपने कहीं पर लोकेशन पे बताया है कि भाई हमारे नेटवर्क लोकेशन है, जो आपका नास डिवाइस हो सकता है या फाइल सर्वर हो सकता है। सो यू वांट यूजर्स टू सेव डेटा ऑन दीज मैप्ड ड्राइव्स। लेकिन अगर यूजर वो सी ड्राइव में डेटा सेव करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट पुलिस एवरीवन एवरी डे, स्पेशली व्हेन यू हैव गुड नंबर ऑफ यूजर्स। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है कि एक यूजर है जो डेटा अपना काम करता है, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, ऑटोकैड फाइल, एंड यू आस्क देम टू सेंड द डेटा ऑन द लोकल ऑन द फाइल सर्वर और सेंट्रल नास डिवाइस। लेकिन वो एक डेमोक्रेसी है, वो सी ड्राइव में भी डेटा जाकर सेव कर सकता है, जैसे यहाँ पर दिखता है। अगर आपको उसका क्लाउड बैकअप लेना है तो गूगल ड्राइव में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि उसकी पूरी हार्ड ड्राइव में से कौन कौन सा डेटा आप बैकअप लेंगे। तो हो सकता है कि आपने कुछ फोल्डर्स उसके हार्ड ड्राइव से लेकर, यहाँ पर कैन वी शो दैट राजेंद्र, सेटिंग्स में जाके, तो हम यहाँ पर गूगल ड्राइव हो सकता है, वन ड्राइव हो सकता है, कुछ भी, सब में सेम होता है। तो यहाँ पर हम गए तो वहां पे हमको दिखाएगा, हम वी कैन सिलेक्ट द फोल्डर्स कि मुझे ये फोल्डर्स जो है यूजर की ड्राइव पे वो बैकअप रखने हैं। अभी प्रॉब्लम इसमें ये है कि यूजर एक तो इसको चेंज कर सकता है, और दूसरा जो फोल्डर आपने गूगल ड्राइव से मैप किए हैं बैकअप के लिए, उसमें यूजर डेटा सेव ही ना करे, व्हाट विल हैपन देन? द बैकअप विल नॉट हैपन ऑन योर गूगल ड्राइव एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल on the backup will be affected. It will be negatively affected, and in fact if your confidence level is less,
your backup strategy is ineffective. राजेंद्र, ये विंडो आप बंद कर दीजिए, छोटा ये गूगल ड्राइव का। तो अभी हमने क्या देखा कि एक तो यूजर सेंट्रल स्टोरेज पे डेटा सेव नहीं करता है, दूसरा अगर यूजर बाहर से काम करता है और उसके पास सेंट्रल स्टोरेज का लोकेशन का ग्रांट नहीं है एक्सेस, तो वो अपने ड्राइव में काम करता है, लेकिन वो अपने ड्राइव में कहीं पर भी काम कर सकता है, कोई भी फोल्डर में काम कर सकता है, और आप पूरा का पूरा ड्राइव तो गूगल ड्राइव से मैप नहीं कर सकते। तो आप कुछ फोल्डर्स पे करते, तो जब सेंट्रल स्टोरेज कनेक्टेड होता है तो आपको यूजर को बताना पड़ता है कि भाई आप डेटा सेव करो सेंट्रल स्टोरेज पे। अगर यूजर बाहर है तो आपको बताना पड़ता है कि आप अपने ये ड्राइव में ये मैंने जो वो 2 फोल्डर दिए हैं या एक फोल्डर दिया है उसी में आपको डेटा सेव करना है। दोनों कंडीशन में इट इज ऑन यूजर्स डिस्क्रिशन। अगर यूजर सेंट्रल स्टोरेज पे डेटा सेव नहीं करेगा तो नहीं आएगा, अगर यूजर वो 2 फोल्डर में डेटा नहीं सेव करेगा तो वो भी नहीं आएगा, एंड दैट विल बी scatteredness, duplication and low confidence backup situation. तो हम लोग अभी ये पूरा देखा, अभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्या क्या सॉल्यूशंस है आईटी इंडस्ट्री में, हम सबका प्रोज एंड कॉन्स समझेंगे और एक अच्छा सॉल्यूशन हम डिराइव करेंगे और उसका कोई डेमो करेंगे। As you know, in our webinar, we don't talk only about problems. We explain the problem and then we explain the solution. So abhi I request Prasanna to launch the poll on your feedback about this autocratic centralization, और ये जो मैंने एक open system आपको दिखाया वो what is your feedback, what is your thinking on that, so that will guide me in further slides so that I can make it very very relevant. तो जैसे वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, which of the following are serious consequences of data scatterness? 67% of the people believe that it is duplication, 56% of the people believe it is difficulty in backup, and 56% of the people say it is low confidence backup. Now अभी हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम इसको रेमेडी कर सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन कैसे होता है। What are the types of autocratic centralization? So I will share the slide to explain that in detail. तो autocratic centralization can be of 2 types. One is autocratic centralization on central storage और दूसरा autocratic centralization on native storage. I will explain. अगर आपका यूजर लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहा है, you might have users who come to the office, work on their computer, go home, again come back next day, or while they are at home, they are not really working on your data. That could be your junior level or entry level or middle level people. There could be people who are given laptop and they work 24/7, कभी भी काम कर सकते हैं। तो उनके लिए फिर नेटिव स्टोरेज होता है। जो पहले टाइप के यूजर्स है, जो मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए हम ऐसा ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन करें कि वो खुद अपने कंप्यूटर पे कुछ सेव ही ना कर पाए, दे कैन ओनली सेव इट ऑन द सेंट्रल स्टोरेज इन रिक्वेस्टेड और रिक्वायर्ड फोल्डर्स। और दूसरे टाइप के यूजर्स है वो वही फोल्डर्स पे काम कर सके जो हमने क्लाउड बैकअप के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, जो हमने क्लाउड बैकअप के साथ मैप किया हुआ है।
तो कहीं और वो उसके खुद के हार्ड ड्राइव में काम ना कर पाए। मतलब पहले वाला ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन विच इज ऑन सेंट्रल स्टोरेज खुद के हार्ड ड्राइव में डेटा ही ना सेव कर पाए, और दूसरा जो नेटिव स्टोरेज है खुद के हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर कर पाए लेकिन स्पेसिफिक फोल्डर्स में ही कर पाए, नॉट एट एनी अदर प्लेस। दैट विल मेक श्योर कि इन द फर्स्ट, for the users who are in local area network, you don't have to worry about the backup of those computers or desktops hard drives. For the other type of the users, because you are sure that all the users can save data on specific folders on their computers and those specific folders can be mapped with the cloud backup, then you are 100% sure that whatever user is working on is properly backed up. उसमें भी थोड़ा एक है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो टाइप ऑफ ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन इज ऑन सेंट्रल स्टोरेज एंड ऑन नेटिव स्टोरेज। जो सेंट्रल स्टोरेज का टाइप है वो इस तरह का है, कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स, जैसे ऑटोकैड का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, 3D का चल रहा है, सॉलिडवर्क्स का चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ चल रहा है, तो यू हैव सो मेनी पीपल कोलाबरेट विथ ईच अदर, शेयर डेटा विथ ईच अदर। हर बार आप ईमेल से डेटा शेयर नहीं कर सकते। दूसरा, इफेक्टिव यूज ऑफ सेंट्रल स्टोरेज, जब सब लोग एक ही जगह पर काम करते हैं तो डुप्लीकेशन नहीं होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो डुप्लीकेशन नहीं होता है। और तीसरा, अगर आप लार्ज फाइल पर काम करते हैं तो योर सेंट्रल स्टोरेज एक्चुअली कैन एकोमोडेट द एक्सचेंज ऑफ लार्ज फाइल ओवर द नेटवर्क, और लार्ज फाइल हैंडलिंग में आपका अगर फाइल्स डुप्लीकेट नहीं होता है तो आपका स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छे से सेव होता है, और दूसरा उसके वर्जन्स अच्छे से मेंटेन होते हैं। नाउ वी विल सी द यूज केस ऑफ ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन ऑन नेटिव स्टोरेज। तो वो एक लैपटॉप यूजर है, वर्क फ्रॉम होम यूजर है, रिमोट यूजर है, तो उस वक्त he cannot have access to your central storage even on VPN. At that time he would save the data on his hard drive. Now this, because if you have implemented native storage force centralization or autocratic centralization, the user will be able to work only on the folders which are mapped with your whatever cloud backup. So whenever they are on internet, their data is backed up. हाँ, अगर आपने वो नेटिव स्टोरेज ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन नहीं किया है तो वो यूजर कहीं और काम करेगा, आपने अपना गूगल ड्राइव, वन ड्राइव किसी और फोल्डर से मैप किया है और बैकअप कभी आएगा नहीं, एंड यू कैन नॉट पुलिस इट। सो दिस इज द टाइप्स एंड यूज केसेस ऑफ ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वुड लाइक टू आस्क प्रसन्ना टू लॉन्च द पोल about audience response on this particular categorization of autocratic centralization. So as we see on the screen, 90% of the people agree that to the point that autocratic centralization can effectively minimize the data scatteredness. Yes, it can minimize, and we have done it for so many customers, and it really minimizes it. So now we will move to our next part. What are the options? What are the options to execute
autocratic centralization. So we will see these options now. और हम लोग हर एक ऑप्शन का प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर भी करेंगे. तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो थीन क्लाइंट्स है. हम सब फैमिलियर है थीन क्लाइंट से. जो लोग फैमिलियरली है उनके लिए मैं समझाता हूँ. थीन क्लाइंट इज अ डिस्कलेस नोड और अ नोड विद सम डिस्क which connects to a server over remote desktop protocol. और सब प्रोसेसिंग, सब स्टोरेज, RAM utilization, everything of that happens on the server. तो सब यूजर्स जो भी काम करते हैं वो वहीं पर सीधा सेव होता है डेटा. सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन. फॉर सो मेनी इयर्स इट हैज बीन. उसके दो लिमिटेशंस है. एक लिमिटेशन ये है कि अगर आप ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, फोटोशॉप, कोरल टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो थीन क्लाइंट नहीं चलेगा फॉर टू रीजंस. एक, वो सर्वर जो आप करेंगे वो बहुत महंगा हो जाएगा बिकॉज इट विल रिक्वायर ह्यूज रिसोर्सेज. और दूसरा, मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज डू नॉट अलाउ मल्टीपल यूजेज, मल्टीपल यूजर्स यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर ऑन द सेम हार्डवेयर. तो जो हार्डवेयर इंटेंसिव सॉफ्टवेयर्स है जैसे ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, 3D स्टूडियो हो गया, फोटोशॉप, सम वीडियो रेंडरिंग सॉल्यूशंस, वो थीन क्लाइंट पर नहीं चलते हैं. सो इफ यू आर एन इंजीनियरिंग कंपनी और इफ यू आर अ कंपनी विच इज डीलिंग विद लार्ज फाइल्स, थीन क्लाइंट इज अ नॉट गुड ऑप्शन. और थीन क्लाइंट में प्रॉब्लम है हाई लाइसेंसिंग कॉस्ट. आज की तारीख में अगर आप थीन क्लाइंट यूज कर रहे हैं विंडोज टर्मिनल सर्वर के साथ तो 9,500 रुपया उसका आरडीपी क्लाइंट क्लैल लाइसेंस का होता है पर यूजर. और जो सर्वर चाहिए वो बहुत महंगा होता है. Recently we were discussing with some company, so they had invested in a server with 512 GB of RAM for 400 users, which is too big. तो जो cost of server है, if you distribute it on per user basis, it is more than a desktop. If you give a desktop to each user. जो सर्वर्स होते हैं उनके साथ फिर आपको एडिशनल स्टोरेज भी देना पड़ता है, either on SAN or NAS, which again adds a cost. आपको विंडोज का एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी बनाना पड़ता है जो एक अच्छे से डोमेन कॉन्फ़िगर करे और डोमेन पॉलिसीज एनफोर्स करे सो दैट योर थीन क्लाइंट सर्वर इज वेरी वेल सिक्योर्ड. As I explained, it is not feasible for resource-centric software like AutoCAD and all that. और इसमें ऑफलाइन आप वर्क नहीं कर सकते हैं. अगर आपका लैन नहीं चल रहा है तो आप उसमें ऑफलाइन काम नहीं कर सकते. यूजर डज नॉट हैव एनीथिंग विथ हिम. सो one solution is Theme Client for autocratic centralization with its own limitations and with its own cost impact, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है. नॉर्मली थीम क्लाइंट सॉल्यूशन को बहुत चीप सॉल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है क्योंकि थीम क्लाइंट सस्ता आता है, 8-10 हजार रुपए का आता है. लेकिन अगर वो थीम क्लाइंट को सर्वर के साथ, सर्वर के पर लगने वाले एक्टिव डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर, विंडोज सर्वर सॉफ्टवेयर, उसके आरडीपी कैल के साथ अगर गिना जाए और वो पूरा जो कॉस्ट है वो पर यूजर पे डिवाइड किया जाए तो थीम क्लाइंट इज एज much as giving individual desktop with license operating system to each users. दूसरा जो ऑप्शन है वो है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस. आप एक थिक क्लाइंट रखिए, सब डेस्कटॉप्स रखिए, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस में जाइए, वहां पर यू कैन मेक द परमिशंस for the users that they cannot save data on their individual hard disks. They have to save data on the file server. It requires multiple hardware. एक आपको प्राइमरी डोमेन बनाना पड़ेगा, एक सेकेंडरी डोमेन बनाना पड़ेगा. You have to install Windows Server license. You have to pay for client access license. आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हर एक कंप्यूटर के ऊपर वो प्रोफेशनल ही होने चाहिए. होम या सिंगल लैंग्वेज नहीं चलेगा बिकॉज होम या सिंगल लैंग्वेज कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू डोमेन. यू विल रिक्वायर 3 हार्डवेयर, डोमेन कंट्रोलर के लिए, फाइल सर्वर के लिए और स्टोरेज के लिए.
और वर्क फ्रॉम होम में एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी सब किया हुआ है और यूजर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो वो सब पॉलिसी इतनी इफेक्टिवली आप उसके ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकते हैं. सो अनदर सॉल्यूशन इज आप एक्टिव डायरेक्टरी से यूजर को रिस्ट्रिक्ट करें. डोंट गिव अ चॉइस टू द यूजर वेर एवर ही वांट्स टू सेव द डेटा. सो दिस इज अनदर सॉल्यूशन. The third solution is virtual desktop interface. This is now very popular. जिसमें हम एक बहुत बड़ा हार्डवेयर ले लेते हैं सर्वर का, जिसके ऊपर हम बहुत सारे वर्चुअल कंप्यूटर्स बना देते हैं. तो जैसे हमने एक 512 GB का या 128 GB का रैम का पूरा एक सर्वर लिया जिसमें ऑक्टा कोर है या मल्टीपल ऑक्टा कोर है, और हमने VMware से बहुत सारे कंप्यूटर्स बना दिए उसके ऊपर, वर्चुअल कंप्यूटर्स आई एम सेइंग. और वो वर्चुअल कंप्यूटर्स विंडोज 10 के प्रोफेशनल वर्जन के बना दिए. और बाद में सभी यूजर को वर्क फ्रॉम होम है, कहीं पर भी है, जो भी डिवाइस है, क्रोमबुक है, जो भी है, उससे वो वर्चुअल कंप्यूटर्स है उसका RDP एक्सेस दे दिया. ये कर सकते हैं लेकिन बहुत हाई लाइसेंस कॉस्ट है. VMware इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी जिससे आप इसको वर्चुअलाइज कर सकते हैं. आपका जो हार्डवेयर है वो काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन है. ऑफ कोर्स टोटल अलग अलग डेस्कटॉप देंगे उससे कम रहेगा, बट VMware का कॉस्ट काफी है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज बीइंग यूज्ड बाय वेरी लार्ज एंटरप्राइजेस हु हैव वेरी डीप पॉकेट्स एंड रिसोर्सेस. SME के लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, SME के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज आवर प्रोडक्ट विच इज ब्लैक बॉक्स, जिसमें हमने ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. आई विल एक्सप्लेन हाउ. तो सबसे पहले आपको, अगर आप ब्लैक बॉक्स ले रहे हैं तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी लेने का जरूरत नहीं है. यू कैन हैव योर ओन ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी टू अप्लाई domain policies without creating a domain. You can apply all those policies without taking that particular computer in the domain. ये टेक्नोलॉजी एजेंट की तरह काम करती है. आपके हर एक कंप्यूटर पे एक एजेंट लग जाता है. आप जो पॉलिसी कंसोल पे बनाते हैं वो एजेंट एनफोर्स कर देता है वो कंप्यूटर के ऊपर, और फिर वो यूजर को नेटिव ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन या फिर सेंट्रल ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन देता है. हम वो देखेंगे. तो इसमें लाइसेंसिंग कॉस्ट बचता है. कैल नहीं चाहिए, विंडोज सर्वर लाइसेंस नहीं चाहिए, और आप प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे सिंगल लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम से भी वही वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में डोमेन टाइप का रिजल्ट ले सकते हैं. There is no additional hardware requirement because black box itself serves as a domain controller and it has huge storage also. और अगर आप AutoCAD टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ब्लैक बॉक्स में NVMe कैशिंग भी आता है, लिंक एग्रीगेशन भी आता है. तो आपका बहुत स्मूथली जो लार्ज फाइल्स होते हैं वो बहुत स्मूथली नेटवर्क पर एक्सचेंज होते हैं, जो बाकी के 3 में एक बड़ा चैलेंज है. और आप उसको ऑफलाइन एक्सेस भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें नेटिव फोर्स सेंट्रलाइजेशन भी है. और बिकॉज ये एजेंट से होता है, बिकॉज इट हैपन्स बाय द एजेंट, you don't have to worry whether user is work from home or remotely working because the agent will always enforce the policy whether user is connected with the server or not. तो ये हुआ हमारा ब्लैक बॉक्स का एक जीरो लाइसेंसिंग कॉस्ट लेवल का हमारा एक सिस्टम. तो अभी हम उसका एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे. हम एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि वो कैसे करता है काम, और बाद में we will move to the next slide and we will conclude our discussion with question answer sessions. So राजेंद्र, सबसे पहले हम console पे जाएंगे. Please go on console. और खाली हम अभी पूरा जो नहीं बताएंगे ब्लैक बॉक्स, अभी हम खाली डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का कॉन्फ़िगरेशन ही बताएंगे. तो can we please go to the console, राजेंद्र? तो ये एक ब्लैक बॉक्स का कंसोल है जिसमें एक ही हार्डवेयर पर आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. मेल, इंटरनेट, डेस्कटॉप, बैकअप, सब एक ही हार्डवेयर पे. अभी हम खाली ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन पर ही फोकस करेंगे. तो जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप है जिसके ऊपर एजेंट लगा है, इट गेट्स लिस्टेड एंड देन यू कैन कॉन्फ़िगर द पॉलिसी.
जिसको हम हार्डनिंग पॉलिसी बोलते हैं, जिससे आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो ऐसे हार्डन हो जाता है दैट इट ओबेज द रूल्स ऑफ ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। जैसे ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव एक यूजर हमने बनाया है, अभी हम उसका पॉलिसी देखेंगे। अभी हम खाली ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन पर ही फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूजर को ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन फोर्स करने के लिए उसको एडमिन राइट से निकालना पड़ेगा। ही कैन नॉट हैव एडमिन राइट्स, नहीं तो फिर वो खुद कर लेगा आपका। तो एडमिनिस्ट्रेटर का राइट यहाँ पे निकाल दिया है। दूसरा, यहाँ पर हमने पूरा उसका लोकल एक्सेस टू द रिसोर्सेज निकाल दिया है। ये हम सेंट्रल स्टोरेज ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बाद में हम नेटिव स्टोरेज की बात करेंगे। तो ये करने के बाद और कुछ हार्डनिंग है जिसमें हम एप्लीकेशन कंट्रोल भी डाल सकते हैं कि ये यूजर है वर्ड, एक्सेल और टैली यूज कर सकते हैं, ये यूजर है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ऑटोकैड यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप वो टिक मार्क भी कर सकते हैं। बहुत कुछ है, हम खाली ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन पर ही फोकस कर रहे हैं। एंड नाउ इफ यू हैव denied the access to the local resource of his desktop, you need to define and specify what folders on the central storage he will access. तो यहाँ पर हम central storage के सर्वर के अलग अलग folders access दे सकते हैं, जैसे downloads है, personal है, common है, accounts है, GST है। This guy is working in accounts, so हमने उसके लिए इस तरफ का किया हुआ है। तो ये, और उसके साथ अगर वो यूजर रिमोटली वर्किंग कर रहा है तो हम उसको वीपीएन राइट्स भी यहीं पर दे सकते हैं। ब्लैक बॉक्स लेने के बाद आपको कोई वीपीएन सर्वर या वो लेने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ वीपीएन सर्वर। तो यहाँ पर हम वीपीएन एक्सेस भी दे सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, यू कैन मेक अ यूजर इन लेस देन 1 मिनट एंड अप्लाई ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। अभी हम देखेंगे वो कैसे होता है। अभी हम लोग ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव यूजर के डेस्कटॉप पे जाएंगे और सेंट्रल ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन को जो कैटेगरी है उसको समझेंगे। या कैन वी लॉग ऑन टू अकाउंट एग्जीक्यूटिव यूजर प्लीज। तो ये एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव यूजर है। हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स लगा है कि नहीं है उसके ऊपर एजेंट। तो ब्लैक बॉक्स का एजेंट यहाँ पर लगा हुआ है। अभी हम जाएंगे उसके वेदर ही इज एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट। तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल में सब खाली है, उसको खाली फॉन्ट का राइट दिया हुआ है। इसको क्लोज कीजिए। अभी हम जाएंगे उसके विंडोज एक्सप्लोरर में, दिस पीसी। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डेस्कटॉप का सी ड्राइव, डी ड्राइव कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? तो जो फोल्डर्स हमने कंसोल में बताए थे कि भाई सेंट्रल स्टोरेज जो ब्लैक बॉक्स है, खुद ब्लैक बॉक्स इज अ ह्यूज स्टोरेज सिस्टम, उसके ऊपर जो जो फोल्डर्स ये यूजर को देने थे, only those folders are being visible over here. So now user is forced to work only and only on these network folders, and that's how we have perfectly achieved the central autocratic centralization. Autocratic centralization on central storage, which is black box. अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, यूजर को एक फाइल बनवाएंगे और उसको अलग अलग जगह पे सेव करने का ट्राई करेंगे लोकल में। We'll see he will fail and he will be forced to save the data on the central location only, which is black box. So अभी एक फाइल बनाया। Now try to save it in downloads first. वो नहीं कर पाएगा। Try to save it in documents. Try to save it on desktops of this computer. वो नहीं कर पाएगा। अभी try to save it on black box, कोई भी accounts का ड्राइव है उसमें करिए। ये डिपार्टमेंट अकाउंट जो है वो ब्लैक बॉक्स का है, तो उसमें हम गए, उसको सेव कर लिया। तो ये सेव करने के बाद वो यूजर इज कंपल्सरीली सेविंग द डेटा। अगर ये यूजर ऑटोकैड करता है तो ये ब्लैक बॉक्स एनवीएमई कैशिंग और लिंक एग्रीगेशन के साथ भी काम करता है। तो बहुत सारी लार्ज फाइल को बहुत फास्ट नेटवर्क के ऊपर वो कर सकता है। तो ये हुआ एक यूजर जो आपके ऑफिस में बैठ के, लोकल एरिया नेटवर्क में बैठ के वर्क स्टेशन पे या पीसी पर काम कर रहा है। अभी कोई यूजर है वो रिमोट कर रहा है, तो हम नेटिव स्टोरेज भी समझेंगे कि नेटिव स्टोरेज पर ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन कैसे होता है। सो नाउ वी विल गो टू अकाउंट मैनेजर। एक लैपटॉप यूजर का हम अभी कनेक्शन लेंगे। अभी हम सब, ये लैपटॉप यूजर है, इसका एक ब्लैक बॉक्स एजेंट लगा है कि नहीं लगा है देख लीजिए।
लगा है, ये ब्लैक बॉक्स के साथ कनेक्टेड नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिसी लगेगा क्योंकि एजेंट लगा हुआ है। नाउ गो टू द कंट्रोल पैनल प्लीज, और देखते हैं ये लैपटॉप यूजर जो लॉगिन है वो एडमिन है कि नहीं है। वो नहीं है एडमिन, तो वो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। नाउ गो टू द सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे में आपको ये दो ही आइकॉन दिखते हैं, आपको गूगल ड्राइव नहीं दिखता है, आपको वन ड्राइव नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। अगर आपने क्लाउड बैकअप कॉन्फ़िगर भी किया है तो यूजर नहीं दिखेगा, और यूजर नहीं देखेगा तो उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर पाएगा। नाउ लेट अस गो टू हिज विंडोज एक्सप्लोरर, दिस पीसी। अभी यहां पर आप देखेंगे, बिकॉज ही इज अ लैपटॉप यूजर, ही हैज गॉट टू फोल्डर्स, ही इज नॉट एबल टू सी हिज सी ड्राइव, ईडी ड्राइव ऑन द लैपटॉप. He is only able to see two drives. Now, what are these two drives? These two drives are secured folders created by the agent on the hard drive of the laptop. Means these two folders are offline and can be used while user is not connected to the black box. But the imagine ki now user is forced to save data in only these folders. He cannot save data anywhere on his C drive, D drive, E drive. No, he cannot. So this is the forced centralization on native storage. तो ये professional.amz drive है, वो यूजर के कंप्यूटर पर भी है और वहां पर वो काम कर सकता है, but he cannot scatter the data. Now we are 100% sure that when user is working on his laptop offline, he is able to save data only in this Z drive. And let's say we have mapped this Z drive with cloud backup service of black box, तो हमको 100% कॉन्फिडेंस है कि सब डेटा जो यूजर काम कर रहा है ऑफलाइन वो सब बैकअप हो जाएगा। कल जाके लैपटॉप चोरी हो गया, यूजर ने रिटर्न नहीं किया, तो भी ये डेटा कंपनी के पास रहेगा। What if the user wants to collaborate with other users in the office on certain files which are there on the black box? तो बहुत सिंपल है, there is a blind VPN टेक्नोलॉजी। तो हम जाएंगे ब्लैक बॉक्स के आइकॉन पे, राइट क्लिक करेंगे, VPN पर जाएंगे और VPN को कनेक्ट करेंगे। तो ये जब यूजर का हमने प्रोफाइल बनाया था तो उसमें उसको कई फोल्डर्स का एक्सेस दिया था। तो जैसे ही वो VPN कनेक्ट करेगा, ब्लैक बॉक्स इज अ VPN सर्वर, इट विल ग्रांट एक्सेस टू मल्टीपल फोल्डर्स ऑन इटसेल्फ व्हिच आर अलाउड to be used by this particular user whoever is connecting to VPN. ये देखिए सब फोल्डर्स अपने आप लिस्ट हो गए। तो अभी आप देखेंगे तो उसका Z ड्राइव भी है जो ऑफलाइन है, तो कुछ काम अगर उसने किया है तो वो ये फोल्डर्स पे शेयर कर सकता है, उसका बैकअप तो हो ही रहा है। और अगर उसको डायरेक्टली, अगर उसके पास अच्छा कनेक्टिविटी और डायरेक्टली उसको ब्लैक बॉक्स पे काम करना है तो वो कर सकता है, बिकॉज ही इज VPN. लेट्स से ही वांट्स टू take the files from these network folders and work on it or collaborate with other users, he can very well do it. So if you see this, it is a perfect autocratic centralization, one on central storage, two on native storage, and user is not given a choice to scatter the data. So there is a zero trust policy on data scatteredness in case you want to adopt. So this is what we want to show एज ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। अभी आप समझिए कि अगर ये ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन नेटिव पे हो गया, ब्लैक उसके लैपटॉप के हार्ड ड्राइव पे, और उसका बैकअप भी हो रहा है, तो हम लोग उसका बैकअप को मॉनिटर भी कर सकते हैं। या कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन फॉर मी? तो उसका हम बैकअप भी कर सकते हैं। सो आई विल शो यू व्हाट इट इज। तो जैसे आपके बहुत सारे लैपटॉप है जिसके ऊपर आपने नेटिव ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन किया हुआ है, तो उन सब का बैकअप होगा। इफ यू आर सीइंग इन माय स्क्रीन, मैं अभी उसके डैशबोर्ड पे जाता हूं। तो वो जितने भी लैपटॉप से वो यहाँ पर इस तरह से दिखेंगे हमको, और हम देख सकते हैं कि उसका बैकअप हुआ है या नहीं हुआ है, और हमको 100% पता है कि वो यूजर लैपटॉप के स्पेसिफिक
पार्ट पर ही काम कर सकता है और वो पार्ट हमारे बैकअप के साथ मैच्ड है, और अगर एरर आता है तो भी हम प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने मैप कुछ किया है, यूजर कोई फोल्डर पे काम कर रहा है, या फिर आपने जो मैप किया है जो भी ड्राइव के साथ, क्लाउड ड्राइव के साथ, वो यूजर चेंज कर दे। आपने देखा होगा सिस्टम ट्रे में हम कुछ नहीं दिखाते हैं। सो दिस इज हाउ autocratic centralization works. Now, I request Prasanna to run the poll, and we would like to move to the question answer session. You can type your question in Q&A, or you can ask for unmuting yourself. Prasanna will help you activate your mic, and you can very well. So as we see on the screen, we are seeing that major concern while implementing autocratic centralization, 50% of the people believe it is hardware cost, 57% of the people believe it's software cost, and complexity is another 64% people. So yes, हार्डवेयर कॉस्ट आपका ब्लैक बॉक्स में नहीं लगता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स खुद एक सिंगल हार्डवेयर आ जाता है उसके अंदर, और एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट नहीं लगता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉस्ट नहीं लगता है, आपको विंडोज सर्वर लाइसेंस, क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस और प्रो लाइसेंस नहीं लेना है, आप सिंगल लैंग्वेज ले सकते हैं। तो सिंगल लैंग्वेज बहुत कम में आता है, प्रो महंगा आता है। आप प्री लोडेड अगर लेते हैं तो बहुत कम खर्चा होता है लाइसेंस का, और कॉम्प्लेक्सिटी जरा भी नहीं है। आपने देखा कि बहुत सिंपल हमने पॉलिसी बनाई और वहां पे ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन हो गया। So I think we have Mr. Gokul to ask the question, and I will first answer the question by Mr. Avinash Kale. Blackbox is cloud-based. Blackbox is available on both the options. In case for compliance reasons or for trust reasons, you want to keep it on premise, you can keep it on premise. In case you want to go for cloud version of the Blackbox, it is also available. Can we give just a moment? I will. Yeah, Mr. Gokul, you can unmute yourself and ask the question. Mr. Gokul Borse, you can ask the question. You're welcome, Mr. Avinash. गोकुल जी, आपको राइट्स दे दिया है बोलने का. You can please ask your question. Yeah, meanwhile, I'll take another question from Mr. Ranganath. How much storage capacity in TB is available in Blackbox? So it starts from approximately 8 terabyte, and it can go up to 196 terabytes. So there is a huge capacity. Yeah, any other questions? Yes, Mr. Kale, we can have a free demo of our product. You can connect with Prasanna. Can you please help offline how they can take the demo of the product? Prasanna, can you please write down?
Yeah, you can send an email on prasanna.dv@sinnersoft.in, which is in the chat. You can please, we can help you organize it. Is weekly schedule shut down and start the black box? You can schedule it. There is a facility, weekly, daily, whatever. You can do that in black box. But normally black box works 24/7. So we have 4 more minutes before we conclude. So you can ask your questions or you can send us an email also. Prasanna has already shared her email ID. Yeah, I think there is one more question. Email solutions, if any. Yes, Mr. Kawa, black box is also, we just explained one feature. Email solution is also there in terms of mail distribution system. So you can connect with the concerned representative. Prasanna, can you please note down? Mr. Kishore is asking for price of the black box. Yeah, so it starts, I mean, it is a capex or opex, it depends. अगर आप cloud पे लेते हैं तो वो opex रहेगा. अगर आप on premise लेते हो तो वो capex रहेगा. दोनों ही केस में पर यूजर कॉस्ट अगर इफेक्टिव गिनते हैं, कैपेक्स को 5 साल के लिए डिवाइड कर लेते हैं, तो दोनों ही केस में 200 से 300 रुपया पर यूजर पर मंथ का कॉस्ट आता है, विच इज वेरी नॉमिनल. बट यस, यू विल बी गिवन स्पेसिफिक डिटेल्स. यू कैन राइट एन ईमेल टू प्रसन्ना. हर ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रिटन. शी विल डेफिनेटली हेल्प यू, मिस्टर किशोर. So I think we are concluding our session. Prasanna, I request you to conclude. And before that, let me announce something very important. Since this is being attended by so many IT people, Sinnersoft is planning an award series, which we call it as IT Excellence Award under the umbrella of United SMEs. So basically, we want to encourage SMEs to upgrade their IT. And we want IT professionals to help SMEs, which exist in huge number, with their IT affairs. So we are launching, United SME, which is funded by Sinnersoft, and it does a lot of good activities for SMEs, is launching in an award which we call IT Excellence Award. And under this IT Excellence Award, there would be Best IT Strategist Award. There would be Most Conscious Enterprise Owner Award, of course, about information security. And there would be an award for an enterprise for deriving best return on investment on IT. So you can all participate. We are going to send email to everyone. It is going to be on our LinkedIn and FB page also. So you can participate, and there are very lucrative prizes for the winners. And we would like to, have very illustrious jury members who will evaluate these applications, and it will be all very, very detailed analysis, and that is how we will choose the winners. So that is something which we are coming up in next week, or 1 week after the next week. But yes, please participate in that. On Wednesday, we are also organizing a free training on Prasanna, कौन सा topic है? Can you help me? Wednesday को भी next Wednesday. Sir, give me a minute. Yeah. So you can check on unitedsmes.in. It does a lot of activities free of cost. You can participate. You can share with your friends, professional circle, or your colleagues to benefit from that.
कौन सा है प्रसन्ना? I think you can check on United SME website. It's on conflict management. Yeah, so it is on conflict management. You can always enroll. It is free of cost, and it is sponsored by Synersoft for United SMEs. And we really engage very good trainers, and it is we get very good feedback on that. So please do that. And in the after we conclude this session, you will be given a survey form based on which we will have a lot of scope to improve. So please help us with your inputs on our survey form also. Over to you, Prasanna. Thank you, sir. Thank you for such a wonderful session. Sudhesh, sir, I would request you to conclude this event for us. Yeah, Prasanna. Thank you, Vishalji. First of all, let me congratulate you on achieving this highs of the career, because when you look for the highs, you'll go to the lows also. So you deserve this. Congratulations to you once again from the team and from on behalf of so many people who keep on talking to me because I move into the market. And today's session was, again, it was very good. And for the people who participated, they can keep coming up with different questions, their valuable suggestions. So thank you to all the attendants. We request all the participants to keep in touch through the email, through their interactive models with the Synersoft. We have different people at different locations who are already in touch with you. So you can also get your queries, questions, and any feedbacks that you have to share with us. You can do that. And thank you for your valuable time that you spent with us today. Thank you once again. With this, we can conclude this session. Thank you. Thank you very much. Thank you.